add more nodes. तो उस केस में we have to write two statements in the else block like nptr arrow next. Okay, nptr arrow next क्या होगा? We look into the picture. nptr arrow next will be next part of the node to which nptr is pointing. This will point where top is pointing, meaning 35 वाले node. Okay, तो ये मैनिपुलेशन करने से क्या होगा? 45 will become my first node and 35 will become my new second node because 45 का pointer 35 वाले node को point कर रहा है. Then the second statement says top equal to nptr. So now top, instead of pointing to 35, will start pointing to 45 wala node where nptr is pointing. So if you look at the resultant picture and the pointers of interest to us, then you will realize that the new node 45 has been successfully added as the first node. Was this much clear to everyone, children? May I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so in this program, as you can see, we have done, as far as the functions are concerned, we have done isEmpty, we have done clear, then we have done this pop, create new node, push. I think only display is left, and is full function to hoga nahi, linked implementation of stack mein, because dynamic implementations, that is linked implementation, does not poses any limitation on the size of the data structure, that is the size of stack here. Okay, we can add more and more nodes because आपका while loop जो है program में वो repeatedly चलेगा and you can always select push operation again and again. The only limitation that is there is that, you know, the amount of memory the compiler has, because every time we are pushing, we are taking fresh memory from the compiler using the create new node function. Create new node function अपने अंदर क्या कर रहा है body में? It is, you know, taking fresh memory from the compiler, right, using the new operator, and it is putting x that we have passed as a parameter into the info part of the new node, making the next part of the info node as grounded, and then the create new node function is returning a pointer to this freshly created memory. Okay, we need a pointer because dynamically created memory locations do not have any names. Then how do we access them? We access them indirectly using the pointer that is pointing to them. So this nptr pointer that is being returned by the create new node function, now this nptr pointer is passed as a parameter to the push function. Okay? And then we have already seen the push function. May I proceed, girls? Is everything clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming to the display function. We have void, then stack type, scope resolution operator, display. What does the scope resolution operator, you know, denotes? Scope resolution operator, the name itself tells you the meaning. You know, an operator which belongs to, which resolves the scope. Okay, and the scope resolution operator tells us about belongingness. Okay, it is always the RHS thing that belongs to the LHS thing. So the scope resolution operator tells us that the display member function belongs to the stack type class. Okay, girls, so let us take up the extreme cases towards the right first in the rough work. Can anyone suggest what will be the extreme cases? If the stack is empty, that is if Stack is empty. Okay, so the first case that we can think of is the stack is empty, meaning the picture is something like that. Top is grounded because it has no node to point to. What are the other cases? Single node, single node or one or more nodes. ये ना दो extreme cases होते हैं.
बट काफी सारे मेंबर फंक्शंस में, ऑपरेशंस में, दे कैन बी क्लब्ड लेटर बट नॉट ऑलवेज, सो यू हैव टू बी केयरफुल. पहले रफ में सिंगल नोड एंड द अदर थर्ड पॉसिबिलिटी वन और मोर नोड्स को अलग अलग हम हैंडल करेंगे, एंड इफ पॉसिबल वी विल क्लब देम. Now single node is, that is the picture is something like this. You have the top pointer, you have a single node with some info part in it, and this is grounded. Then the third possibility is one or more nodes. So we have the picture something like this. Top is pointing to say I have 3 nodes here. Pointer part of the last node is grounded. I have 45 here, 25 here and 15 here. ठीक है, तो बताइए फर्स्ट केस में क्या करना पड़ेगा? हमें ऐसे ही कुछ चेक करना पड़ेगा ना. If top equal to Double equals to null. then we can put some error message, see out, the stack is empty, nothing to display. ठीक है, सेकेंड केस में कैसे चेक करेंगे हम? Yes, anyone? Ma'am, top points to next is equals to null. Points to the top arrow next. Yes, ma'am. Next top arrow double equals to null. will equal to null. ठीक है, ये ध्यान रखिए. You have studied about 2 operators in C++, 2 common operators. One is the arrow operator and other is the dot operator. ठीक है, जब भी हमारे पास क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने एम्प्लॉय क्लास का E1 ऑब्जेक्ट बनाया और मुझे उसका जो है नेम डिस्प्ले करना है या सैलरी डिस्प्ले करनी है, सो हाउ डू आई राइट? cout E1 डॉट सैलरी. दिस इज हाउ आई डिस्प्ले, isn't it? Where E1 is an object. कई बार क्या होता है, I do not have an object, but I have a pointer to the E1 object. कहने का ये मतलब है कि जैसे ये मेरा E1 ऑब्जेक्ट है मेमोरी में, सो आई हैव ए पॉइंटर से ptr which is pointing to this object. ओके, तो उस केस में आई हैव टू यूज द एरो ऑपरेटर, मीनिंग हाउ डू आई डिस्प्ले द सैलरी ऑफ दिस E1 एम्प्लॉय नाउ? cout ptr arrow salary. Okay, so the syntax is pointer name arrow डेटा मेंबर नेम, और अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट है तब ऑब्जेक्ट नेम डॉट डेटा मेंबर नेम. ऑब्जेक्ट के नेम के साथ डॉट लगाएंगे और पॉइंटर के साथ एरो लगाएंगे. क्लियर? सिमिलरली फॉर एनी मेंबर फंक्शन ऑल्सो. तो इसीलिए अब हम ऊपर टॉप एरो नेक्स्ट बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेरा 45 वाला नोड है, अगर आपको याद हो, ये क्लास नोड का ही एक ऑब्जेक्ट है. हमने नोड क्लास बनाई है ना प्रोग्राम में, उसी का ये ऑब्जेक्ट बनाया था हमने क्रिएट न्यू नोड के अंदर. क्लियर? द टॉप इज अ पॉइंटर व्हिच इज पॉइंटिंग टू एन ऑब्जेक्ट. So how do we access the next part, which is the data member of this object, or the info part, which is the data member of this object, using the arrow operator? ठीक है? So if top arrow next equal to null, तो क्या डिस्प्ले करेंगे हम? cout top arrow info. Clear? Now coming to Yes, ma'am. the third case. How are we going to write in the third case in rough? चलिए बताइए. Can anyone suggest? Can we make a for loop? A simple for loop. Yes, ma'am. एक पॉइंटर बना लेते हैं P नाम से या PTR नाम से, और इस पॉइंटर को एक एक कदम आगे चलाएंगे. First we will make this pointer point where top is pointing, और टॉप हमेशा फर्स्ट नोड को, टॉप मोस्ट नोड को पॉइंट करेगा. फिर हम क्या करेंगे, इस लिंक करके पीटीआर को एक कदम आगे बढ़ाएंगे. इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, मतलब 25 वाला नोड. इस तरीके से एक एक कदम आगे चलाएंगे. व्हाई डू वी मेक an extra pointer PTR for performing this job? टॉप को भी तो हम एक एक कदम आगे चला सकते हैं ना, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज अगर टॉप को हम चेंज कर देंगे, अपडेट कर देंगे हर स्टेप पे, तो क्या होगा, मेरा तो डेटा स्ट्रक्चर जो है, स्टैक जो है मेरी, वही डिस्टर्ब हो जाएगी. Yes or no? In a stack, the top should always keep pointing to the topmost node. So I am not allowed to update or change top. Correct?
So how am I going to do? For PTR हमारा जो लूप का वेरिएबल है वो PTR पॉइंटर बनेगा, ना कि टॉप. टॉप को हमें अनडिस्टर्ब्ड रखना है. For PTR equal to top, this means PTR will point where top is pointing. जिस तरीके से मैं दो इंटीजर्स या दो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स को इक्वेट कर सकती हूँ प्रोग्राम में, int x is equal to y, उस तरीके से पॉइंटर्स को भी कर सकती हूँ, राइट. सो आई राइट फॉर PTR equal to top, कंडीशन आप मेरे को बताएंगे. Yes, pointer is not equal to PTR. PTR is equal to PTR arrow next. ठीक है. Condition part will be pointer not equal to null. Like ma'am, every What are you condition saying? will be pointer not equal to null will be the condition part, so that we can display each node. Okay, chalo, let us write what she is saying. Then through dry running we will check whether she is correct or not. Okay, so फर्स्ट जो इनिशियलाइजेशन है मेरे फॉर लूप स्टेटमेंट में वो है PTR इक्वल टू टॉप, मीनिंग PTR स्टार्ट्स पॉइंटिंग वेयर टॉप इज पॉइंटिंग. तो PTR इधर पॉइंट कर रहा है. क्लियर. नाउ व्हाट डू आई नीड टू राइट टू डिस्प्ले 45? यस, सी आउट. अच्छा, पहले तो हम टेस्टिंग ऑफ द कंडीशन पे आएंगे लूप स्टेटमेंट की. PTR नॉट इक्वल टू नल, दैट इज ट्रू. सो व्हाट एम आई गोइंग टू राइट हियर? Pointer arrow to info. Pointer arrow to PTR arrow to info, and here we can put a /t or just an empty space, okay, to separate out the values. All right. उसके बाद after displaying this, my control will go to the updation part. It says PTR equal to PTR arrow next. RHS देखिए, it says PTR arrow next. What is meant by that? Next part of the node to which PTR is pointing. तो PTR 45 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. PTR arrow next क्या है? ये है. ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये 25 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है. तो जो LHS है PTR वो भी वही पॉइंट करेगा जहां पर PTR arrow next पॉइंट कर रहा है, क्योंकि इनिशियलाइजेशन है, इक्वल टू साइन है ना बीच में. सो दिस लिंक ब्रेक्स अप, और जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है PTR will start pointing here. Again my control comes to the testing of the condition. PTR not equal to null, this is true. So my control enters the loop body. It says PTR arrow info. So first 45 display हुआ था, now 25 display होगा. Okay, again my condition will go to the updation part. PTR equal to PTR arrow next. PTR arrow next जो है वो इधर पॉइंट कर रहा है. So this link breaks up and my PTR starts pointing to this node. Correct? Now testing of the condition, PTR not equal to null. This is true. So I enter the loop body. PTR arrow info 15 is displayed. Then again to the testing of the condition. To the updation. It says PTR will point where PTR arrow next is pointing. PTR arrow next तो भाई अब ग्राउंड है, वो ग्राउंड को पॉइंट कर रहा है, मतलब वो नल है. So this link breaks up. PTR will also start pointing where PTR arrow next is pointing. Now testing of the condition. PTR should not be equal to null. But now this is false. My PTR is null. So my loop breaks up and then I come to the statement which is immediately after the closing of the loop body. Now the only part that we need to check, children, is case 2, where I have a single element in the linked list also being covered by or encompassed by case 3. Let us see. इसमें भी हम वही PTR pointer अगर बनाते हैं तो for loop को देखिए. For PTR equal to top, मतलब PTR will point where top is pointing, that is 45 वाला node, correct? Then PTR should not be equal to null, true है. Enter the loop body, display PTR arrow info, तो 45 display हो गया, correct? Then updation, PTR will point where PTR arrow next is pointing, meaning this link will break up and PTR will also be grounded now. Coming to the testing of the condition, PTR should not be equal to null.
but this is false, so my loop is terminated, and my control goes to the statement that is immediately after the closing of the for loop body. So it is clear, children, that we can club case 2 and case 3 here. Is it fine? So how do I write? सबसे पहले मैं ptr नाम का एक temporary pointer बनाऊंगी या temp नाम का. How do I do that? Can anyone tell me the declaration for PTR? So not asterisk PTR and then PTR equal to new node. Node asterisk PTR. Yes, and then PTR equal semicolon. Then in next line PTR equal to new node. Why PTR equal to new node? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. We want. We don't want any fresh memory. So it will be. Are we making? Are we taking memory dynamically? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. So it will be on. No, ma'am. So we will be. It will be only node asterisk PTR. Node asterisk PTR. Then we will check if top equal to null. Then we are going to write cout stack is empty, nothing to display, or something like that. Any error message you can write. Okay, and then in the else part, what are we going to do? We will write the for loop जो हमने बनाना है, या इससे for loop से भी पहले हम एक prompt लगा सकते हैं to make the program user friendly, and we can write cout \n contents of the stack starting from topmost point R. Okay, and then we can start a for loop for PTR equal to top. PTR should not be equal to null, and then PTR equal to PTR arrow next. Inside the for loop, we have a single statement, cout PTR arrow info, then a \t, closing of the for loop, closing of the else, and closing of the display function. So is this clear to everyone, girls? May I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now coming to the main function. Yes, int main or void main, whatever your compiler is supporting, you see to that. सबसे पहले क्या करेंगे? Stack type class का object बनाएंगे. Stack type S. Okay. अब कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे जो हमें पता चाहिए, जैसे int e, क्लियर, इज एम्प्टी मेंबर फंक्शन के लिए. उसके बाद int a या x जो हमें नए नोड के इन्फो में डालना है, मतलब क्रिएट न्यू नोड को हमें पास करना है. व्हाट एल्स? पॉप क्या रिटर्न कर रहा है? द एलिमेंट दैट हैज बीन डिलीटेड. अगर पॉप भी रिटर्न कर रहा है, यस, पॉप इज रिटर्निंग, सो वी हैव टू राइट डी आल्सो हियर. डी फॉर डिलीट, जो डिलीट हुआ है नोड, उसका इन्फो पार्ट डी में हम रिटर्न करेंगे. व्हाट एल्स? एंड 1 2 3 4 5 लेने के लिए, मेन्यू की चॉइस लेने के लिए हमने चॉइस वेरिएबल बनाया था, और वाइल लूप के लिए हमने char c बनाया है, स्मॉल y. ठीक है, इसे अभी इधर सेमीकोलन लगा देते हैं, और वेरिएबल्स की जरूरत होगी तो वी कैन ऐड मोर. राइट, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? यस, First of all, we will take a while loop. While. Yes, ma'am. so we will write while c equal to small y और c equal to capital Y. कैपिटल Y इसलिए बिकॉज जब while लूप आपका रिपीटेडली डिस्प्ले हो रहा है, ओके, मतलब आपका मेन्यू रिपीटेडली डिस्प्ले हो रहा है बिकॉज ऑफ द while लूप, देन समटाइम्स इफ द कैप्स लॉक इज ऑन, देन कैपिटल Y शुड ऑल्सो बी एक्सेप्टेड. अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके अंदर मेन मेन्यू डिस्प्ले करेंगे.
cout \n main menu, देन 1 2 3 4 5 जो भी है आपके, जैसे पुश है, पॉप है, इसको आप कंप्लीट करेंगे. देन टू चेक इफ एम्प्टी, ओके. देन खाली डिस्प्ले, आई थिंक क्लियर फंक्शन भी है हमारे पास इसमें. और भी बना सकते हैं चिल्ड्रन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके. एक कुछ टेक्स्ट बुक्स में होता है टॉप मोस्ट मेंबर फंक्शन, मतलब सिर्फ जो टॉप मोस्ट नोड है उसका इन्फो आप डिस्प्ले करेंगे, उसे हम टॉप मोस्ट फंक्शन बोलते हैं. तो जरूरी नहीं है एग्जाम में वही आए जो मैंने कराया है. मैंने आपको 90% टास्क तो करा दिया है. टॉप मोस्ट फंक्शन तो बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंट करना. आप स्टैक को चेक करिए, इफ टॉप इज इक्वल टू नल, तब तो भाई स्टैक ही एम्प्टी है, कुछ टॉप मोस्ट नोड है ही नहीं. तो सी आउट डिस्प्ले कर दो सीधा, द स्टैक इज एम्प्टी, देयर इज नो टॉप मोस्ट नोड. एल्स पार्ट में मतलब क्या करोगे, देयर आर वन और मोर नोड्स, तो क्या करोगे एल्स पार्ट में सिर्फ आपको सी आउट टॉप एरो इन्फो करना है. टॉप एरो इन्फो मुझे क्या देगा, इन्फो पार्ट ऑफ द नोड टू विच टॉप इज पॉइंटिंग, और वही मुझे बस डिस्प्ले करना है टॉप मोस्ट में. तो टॉप मोस्ट फंक्शन जो कुछ टेक्स्ट बुक्स में होता है, इट जस्ट डिस्प्लेज द इन्फो ऑफ द टॉप मोस्ट नोड. काउंट में क्या होता है, काउंटिंग द नंबर ऑफ नोड्स इन द स्टैक. ओके, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी. जिस प्रकार से हमने डिस्प्ले किया है उसी प्रकार से एग्जैक्टली काउंट फंक्शन होगा. सिर्फ आपको लूप के अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेटमेंट डालनी है. जैसे आपने सी या ct वेरिएबल बनाया, तो ct को लूप के बाहर 0 कर दो, एंड लूप के अंदर क्या कर रहे हो आप, ptr पॉइंटर के थ्रू हर नोड को विजिट कर रहे हो एक एक बारी डिस्प्ले करने के लिए. ये सब नो, तो हर नोड पे आप जा रहे हो. जैसे जैसे आप हर नोड पे जाओगे तो डिस्प्ले करते वक्त ct++ करते जाओ. So when my loop terminates, I will be having the count of the number of nodes in the ct variable. Loop के बाहर उसको डिस्प्ले कर दो cout ct. So that can also be implemented. Okay. फिर हम cout करेंगे enter your choice. इस प्रोग्राम को आगे और बढ़ाना 1 से 7 तक, ये सब भी इंप्लीमेंट करना. So cout enter your choice 1 to 7, then cin choice. After that, since all these are menu driven programs, तो मुझे switch case बनाना ही पड़ेगा, switch choice. अब आते हैं नंबर 1 जो मेरा push function. अब push function में I have to keep in mind फंक्शन केसेस फंक्शन के अंदर हैंडल करें और कौन से जो हैं मेरे उसमें मेन मेन्यू में रह गए हैं. तो पुश के अंदर आप देखिए, आई हैव टेकन केयर ऑफ एम्प्टी केस, कि जब स्टैक एम्प्टी है तब किस तरीके से पुश करना है, और 1 और मोर नोड्स है तब किस तरीके से, मीनिंग एवरीथिंग हैज बीन हैंडल्ड. और लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक में कुछ ओवरफ्लो की प्रॉब्लम तो होती नहीं है पुश के दौरान, बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इन डायनामिक इम्प्लीमेंटेशंस. ओके, तो पुश में मुझे कुछ भी एक्सट्रीम केस मेन फंक्शन में अभी हैंडल नहीं करना है. लेकिन पुश कॉल करने से पहले आई हैव टू टेक फ्रेश मेमोरी फॉर द न्यू नोड दैट इज टू बी पुश्ड. और वो काम कौन करता है, क्रिएट न्यू नोड फंक्शन. अब अगर क्रिएट न्यू नोड को देखें तो दिस इज रिटर्निंग ए पॉइंटर टू द फ्रेश मेमोरी ऑफ टाइप नोड asterisk, and it accepts an integer variable x which it puts into or it fits into the info part of the fresh memory. ठीक है, तो ये काम मुझे करना पड़ेगा. क्रिएट न्यू नोड को मुझे इधर केस 1 में पहले क्रिएट न्यू नोड, फिर पुश को कॉल करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा भाई नोड asterisk टाइप का. सो आई कैन राइट हियर नोड asterisk 10, राइट. और जो एलिमेंट पुश करना है उसके लिए हमने a बनाया था. तो सबसे पहले हम इधर लिखेंगे cout enter a value or enter an integer, right. Then cin a. अब कैसे कॉल करेंगे क्रिएट न्यू नोड को,
भाई इट इज रिटर्निंग एन नोड asterisk pointer, मतलब temp equal to yes, temp equal to name of the object है हमारा, stack बनाया था या class बनाया था, s, so temp equal to s dot create new node और इसको एक इंटीजर पास करना है जिसका नाम a है. Now अब temp क्या होगा? After this function has been executed, after my control has jumped to the function body, executed and come back, temp will be the pointer that will be pointing to the fresh memory. तो ऐसी कुछ पिक्चर होगी अगर a की वैल्यू मेरी 45 थी. अब इस टेम्प को मुझे पुश में पास करना है. अगर आप पुश को देखें, सो यू सी इन द पुश फंक्शन, वेयर इज द पुश फंक्शन? यस, हियर, node asterisk ptr, and push is not returning anything. Here s dot push और इसको मुझे टेम्प पास करना है. ठीक है, फंक्शन इन्वोकेशन या कॉलिंग में सिर्फ हम नेम ऑफ द पैरामीटर लिखते हैं. आपको पता होगा C++ की नॉलेज से डेक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग भी जिसको हम बोलते हैं, राइट, इसमें हम मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है वो पैरामीटर का डेटा टाइप होता है. साथ में आप नेम भी लिख सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट C++ में डेटा टाइप की होती है. जैसे आप फ्लोट लिख देते हैं, प्रोटो, राइट, जो होती है फंक्शन की. फंक्शन डेफिनेशन में बोथ डेटा एंड नेम ऑफ द पैरामीटर इज टू बी रिटन, एंड इन फंक्शन इन्वोकेशन ऑफ फंक्शन कॉलिंग only name of parameters करें आप, चाहे इंटीजर कैरेक्टर पास करें. So this is the pointer that I am passing. Operation will be performed successfully when I turn back to case 1. I told you it's a good program. That is whenever you perform any change or push for any operation on the structure, it is a good program to always call the display function, so as to ensure that the updation was done successfully. उसके बाद break statement, that will be the end of case. Clear girls? ठीक है? Yes. Case ने मेनू में पॉप का बनाया. अगर पॉप को ध्यान से देखें, functionalities are being handling inside pop body. अगर स्टैक एम्प्टी है, अंडरफ्लो है, तब भी जो है हम पॉप के अंदर ही वो हैंडल कर रहे हैं. और इफ देयर आर वन और मोर एलिमेंट्स, दैट आल्सो वी आर हैंडलिंग इनसाइड द पॉप बॉडी, ऑब्वियसली. ठीक है, एंड प्लस पॉप इज रिटर्निंग द एलिमेंट दैट बीन डिलीटेड. बट यू सी, अगर स्टैक एम्प्टी है और अंडरफ्लो है, तब भी जो है रिटर्न तो कुछ होएगा ही, गार्बेज रिटर्न हो जाएगा. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ये जो इफ ब्लॉक है इसके अंदर वी कैन राइट रिटर्न -1, अज्यूमिंग कि हमारे जो स्टैक के एलिमेंट्स हैं वो हमेशा पॉजिटिव हैं. क्लियर? सो इफ इट इज अ पॉजिटिव एलिमेंट दैट हैज बीन रिटर्न, मीनिंग ए जेन्युइन, या इसको ना भी करके एक काम और कर सकते हैं कि हम, so that we can include the negative elements also, हम ये वाला पार्ट मेन में हैंडल कर सकते हैं. ठीक है, that will be better. तो इसको अगर हम इधर से काट दें, else पार्ट को हटा दें, मतलब सिर्फ else की स्टेटमेंट्स हैं, बिकॉज अदरवाइज ना हमें -1 को हम स्टैक के इन्फो में नहीं डाल पाएंगे कभी भी. तो इधर हम कर सकते हैं केस 2 में पॉप में इफ, अच्छा, पर इधर आप टॉप को यूज नहीं कर सकते केस 2 में, बिकॉज टॉप इज ए प्राइवेट डेटा मेंबर.
तो हमें इज एम्प्टी कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैसे कॉल करेंगे? इज एम्प्टी की रिटर्न वैल्यू ई में आएगी, इक्वल टू एस डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, दिस इज चेकिंग फॉर एम्प्टीनेस। तो अगर 1 रिटर्न करेगा तो मतलब द स्टैक इज एम्प्टी, सो वी विल इज इक्वल टू 1 cout \n stack is empty। अंडरफ्लो हो गया ना ये, that the stack is empty and you are trying to delete, right? else part में it is guaranteed that there is something to be deleted। तो क्या करेंगे? d हमारा वेरिएबल है जो अपने में स्टोर करेगा whatever element has been deleted, नोड जो डिलीट हो रहा है उसका info part। So d equal to s dot pop, clear? Then cout when you come back, or are we displaying it in the pop, the element that has been deleted? No, because we are returning it ना। हाँ, हम नहीं डिस्प्ले कर रहे, हम तो d को रिटर्न कर रहे हैं। So here we can write cout d has been deleted and then invoke the display function as a good programming practice। Closing of else, the break statement here, and that's it, then followed by case 3। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. Okay, अब Yes, ma'am. अब केस 3, केस 4, केस 5 तो बहुत इजी है। केस 3 में इफ एम्प्टी है, केस 5 में सिर्फ डिस्प्ले को कॉल करना है, क्लियर को, काउंट को, टॉप मोस्ट को। जैसे काउंट है उसमें जितने एलिमेंट्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं उसको या तो काउंट फंक्शन में डिस्प्ले कर दो या काउंट से कुछ रिटर्न करवाओ, इंटीजर वैल्यू सीटी। टॉप मोस्ट में भी सेम, या तो रिटर्न टाइप बना सकते हो, नहीं तो टॉप मोस्ट के अंदर ही डिस्प्ले करा सकते हो। सो आई होप चिल्ड्रन द मेन the main function can now be completed by you all। Yes, ma'am. All right, Yes, ma'am. implement all these things, count, topmost, clear, everything। May I move to the next topic, children? Yes or no? Yes, ma'am. Yes? Okay, now next topic जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो मैं ऑलरेडी आपको इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ उसकी, लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ, सो वी विल रिवाइज दैट एंड देन वी विल स्टडी लिंक्ड लिस्ट इन डिटेल्स। आपकी लैब गाइडलाइंस जो हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, उसमें भी लिंक लिस्ट का डिटेल्ड प्रोग्राम, लॉन्ग प्रोग्राम इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लैब। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स में जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो लैब्स हैं, वो सिर्फ लैब्स तक सीमित नहीं है। कोई भी प्रोग्राम तो पूरा नहीं आता, कोई भी फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का लिखने के लिए आ सकता है आपको थियोरी में, और हर साल आते हैं 2-3, और कुछ तो नए भी आते हैं जैसे आपने क्लास में करे हैं। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं इम्प्लीमेंट डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स में, पुश, पॉप, डिस्प्ले, इज एम्प्टी, इज फुल। कई बार एग्जाम में डिस्प्ले की मॉडिफिकेशन, डिस्प्ले एवरी ऑड नंबर, ऑड वैल्यूड एलिमेंट। तो बहुत सिंपल है, जिस तरीके से हमने डिस्प्ले फॉर लूप अभी बनाया था, आप सी आउट पीटीआर एरो इन्फो ना करके आप पहले पीटीआर एरो इन्फो को चेक करो। इफ पीटीआर एरो इन्फो इज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, पीटीआर एरो इन्फो मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड्यूलस मीन्स द रिमाइंडर ऑपरेटर। अगर इवन वैल्यू होगी पीटीआर एरो इन्फो तो 2 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा, और अगर 0 नहीं आ रहा इसका मतलब वो ऑड वैल्यूड है क्लियरली। तो आप डिस्प्ले करने से पहले क्या करेंगे, इफ पीटीआर एरो इन्फो मॉड्यूलस 2 नॉट इक्वल टू 0, तब सी आउट पीटीआर एरो इन्फो, नहीं तो लूप को आगे बढ़ने दो। अगर वो ऑड इवन वैल्यूड है तो उसे डिस्प्ले नहीं करना। ये एक मॉडिफिकेशन है। और मॉडिफिकेशन डिस्प्ले की क्या हो सकती है,
display only the topmost and the last node of the stack. तो क्या होगा, ptr arrow info डिस्प्ले कर दो फर्स्ट टाइम जब लूप में जा रहे हो, उसके बाद आप लूप को चलाओ, जब लास्ट नोड पे पहुंचोगे उसकी वैल्यू. सो दिस वे मेनी मॉडिफिकेशंस आर पॉसिबल. क्लियर? डेटा स्ट्रक्चर्स में पूरा लैब का पार्ट थियरी में भी आता है. डोंट थिंक कि लैब का काम लैब में खत्म हो गया. नो, एनी ऑफ योर प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का जो है आपका फंक्शन लिखने के लिए आ सकता है और नया भी आ सकता है. ओके, नाउ लुक एट द लिंक लिस्ट. लिंक लिस्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट एक डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है. डायनामिक वर्ड का ही मतलब कंप्यूटर साइंस में ये है दैट द मेमोरी इज एलोकेटेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम और ड्यूरिंग रन टाइम. क्योंकि मेमोरी एग्जीक्यूशन टाइम पे या रन टाइम पे एलोकेट होती है तो यूजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है कि भाई नंबर ऑफ नोड्स या अमाउंट ऑफ मेमोरी उस डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर के लिए फिक्स्ड नहीं है. क्योंकि एग्जीक्यूशन टाइम पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं कि उसे कितने नोड्स उस डेटा स्ट्रक्चर में चाहिए या कितनी मेमोरी चाहिए. तो इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है बिकॉज मेमोरी एलोकेशन इज ड्यूरिंग रन टाइम. ठीक है, तो सेम टाइम पे हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं या व्हाइल लूप लगा सकते हैं, जैसा कि हमने प्रोग्राम में देखा. यूजर से चॉइस ले सकते हैं कि अगर उसे पुश करना है बार बार तो न्यू मेमोरी विल बी एलोकेटेड. क्लियर? स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स जैसा कि एरे है सपोज, उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं दी जाती बिकॉज स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट होती है कंपाइल टाइम पे. कंपाइल टाइम कम्स बिफोर द एग्जीक्यूशन टाइम, है ना. अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहेंगे कितना साइज होगा एरे का, तो वो तो एग्जीक्यूशन टाइम पे इनपुट करेगा n की वैल्यू, बट कंपाइलर को तो मेमोरी कंपाइल टाइम पे एलोकेट करनी है पहले. सो दैट इज व्हाई दिस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेरिएबल साइज is not given for static data structures. तो linked list by default एक dynamic data structure है. Dynamic data structures के अपने अलग advantages and disadvantages हैं. सबसे important advantage तो dynamic data structure का यही है that the size of the data structure may not be pre-known or it may not be fixed. But there are disadvantages also. क्या disadvantages are? Obviously dynamic data structures के लिए we need to use pointers to implement them. So the programming becomes little complicated. ठीक है, तो ये एक डिसएडवांटेज है. अब अगर स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर जैसे एरे है उसकी एडवांटेज ये है दे आर इजी टू इम्प्लीमेंट. देन डिसएडवांटेज क्या है? साइज इज नॉट प्री नोन. अगर साइज फिक्स्ड या प्री नोन नहीं है तो हम क्या करते हैं, यूजुअली लार्ज इनफ एरे बना देते हैं ताकि हमें दिक्कत ना हो प्रोग्राम में. फॉर एग्जांपल 20 एलिमेंट्स का एरे, बट मेकिंग एट 20 एलिमेंट एरे जबकि हमें जरूरत सिर्फ 13-14 की अगर पड़ेगी प्रोग्राम में, सो दिस लीड्स टू मेमोरी वेस्टेज. एट द सेम टाइम अगर मैंने अपना साइज एरे का छोटा बना दिया, लाइक 20 बना दिया, लेकिन मुझे 25 स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंट करना था प्रोग्राम में, सो दिस विल ऑल्सो लीड टू प्रॉब्लम इफ द साइज ऑफ माई स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर इज स्मॉलर देन दैट व्हाट आई रिक्वायर. So every technique has its own set of advantages and disadvantages. Now coming to a linked list, नाम से ही पता लग रहा है कि क्या चीज है. In computer science is a subject that is man-made. In fact, the device or the machine is also man-made. It is invented by humans. So every term, not only in data structures but in other papers also that you encounter, हमेशा सोच के देखना कि उस term का English meaning क्या है. आधी समझ तो आपको अपने माइंड में वैसे आ जाएगी क्या चीज है. अब किसी बच्चे को ना भी बताओ लिंक लिस्ट क्या है, नाम से ही पता लग रहा है. लिंक्ड लिस्ट, लिस्ट मतलब सीक्वेंस, सीरीज ऑफ समथिंग, एक के पीछे एक एलिमेंट्स, और लिंक्ड मतलब जो आपस में लिंक्ड है. लिंकेजेस कैसे बनते हैं प्रोग्रामिंग में? हमेशा पॉइंटर्स के थ्रू. ओके, सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर मीनिंग वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? जैसे 2 डायमेंशनल एरे होता है, वो 2D डेटा स्ट्रक्चर है. So a linked list is a linear data structure in which the individual elements are called nodes. Each node consists of 2 or more parts called as the data part and the pointer part.
डेटा पार्ट को हम इन्फो भी बोलते हैं और पॉइंटर पार्ट को नेक्स्ट भी बोलते हैं, ठीक है। अब लिंक लिस्ट की अगर हम बात करें, अब आप स्टैक को भूल जाओ, अब हम सिर्फ लिंक लिस्ट को पढ़ रहे हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड चिल्ड्रन, लिंक लिस्ट इज अ स्टैंड अलोन डेटा स्ट्रक्चर इन प्रोग्रामिंग, बट स्टैक इज नॉट ए स्टैंड अलोन डेटा स्ट्रक्चर। जब हम अभी लिंक लिस्ट का प्रोग्राम शुरू करेंगे ना आज, तो हमें किसी और डेटा स्ट्रक्चर की मदद की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हमने स्टैक में या तो एरे की मदद ली थी या लिंक लिस्ट की ली थी, इसीलिए हमारे 2 प्रोग्राम्स बने थे अलग अलग स्टैक के। पर लिंक लिस्ट में हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमारा जो प्रोग्राम बनेगा वो स्टैंड अलोन प्रोग्राम बनेगा। Pallavi, did you mail me the email ID of all students? Yes, ma'am. Okay, good. और मुझे ग्रुप 1 के प्रोग्राम्स दोबारा चाहिए, कल मैंने मार्क नहीं करे आपके ग्रेड्स। चलिए, नाउ कमिंग टू द लिंक लिस्ट प्रोग्राम के थ्रू ही सारे केसेस डायग्राम प्लेन करो। आपका जो नया CBCS स्ट्रक्चर है, दैट इज योर अंडर LOCF, उसमें लास्ट ईयर गाइडलाइंस रिवाइज हुई थी। आपके जो सीनियर्स हैं जो भी प्रेजेंटली 3rd ईयर में हैं, दे वर द फर्स्ट बैच टू स्टडी द रिवाइज्ड सिलेबस। सो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 है लैब गाइडलाइंस में सिंगली लिंक लिस्ट का, ठीक है। S स्टैंड्स फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। जो मैंने आपको लिंक लिस्ट बताई है वही सिंगली लिंक लिस्ट है। आपके सिलेबस में डबली लिंक लिस्ट भी है, ये भी हम पढ़ेंगे। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, एक की जगह 2 पॉइंटर्स होते हैं, इसीलिए उसको डबली बोलते हैं। जिस लिंक लिस्ट में हर नोड में एक पॉइंटर है, जैसा कि हमने ड्रॉ किया है, वो सिंगली लिंक लिस्ट है। तो डबली सिंगली दोनों प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। सिंगली लिंक लिस्ट में आपको क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, इंसर्ट एट बिगिनिंग ऑफ सिंगली लिंक लिस्ट। नंबर 2 है insert at ith position. Then 3rd is remove from beginning. Then remove from ith position. Then 5th is search for an element and return its pointer. And 6th is concatenate to singly linked list, ठीक है। ये आपकी गाइडलाइंस में 6 ऑपरेशंस मेंशन्ड है सिंगली लिंक लिस्ट के प्रोग्राम के लिए। तो जो हमारी गाइडलाइंस में मेंशन्ड है, चाहे थियोरी है चाहे प्रैक्टिकल की गाइडलाइंस है, उतना तो मिनिमम उतनी चीजें हमें पढ़नी है और इम्प्लीमेंट करनी है। कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको, बिकॉज थियोरी में आ जाता है कई। नाउ कमिंग टू द प्रोग्राम के थ्रू ही सारा कंसेप्ट एक्सप्लेन होगा। क्योंकि ये डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर है तो 2 क्लासेस की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक हम बनाएंगे नोड क्लास और एक लिंक्ड टाइप क्लास। याद रखना, लिंक लिस्ट जो है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, टॉप मोस्ट पॉइंट पे करना है या कहीं करना है, राइट। लिंक लिस्ट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में होती है। और लिंक लिस्ट में हम इंसर्शन को इंसर्शन या एडिशन बोलते हैं, डिलीशन को रिमूवल या डिलीशन बोलते हैं। पुश एंड पॉप एंड टॉप, ये तीनों चीजें इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज स्पेसिफिक टू स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। इट इज नॉट यूज्ड एनीवेयर अपार्ट फ्रॉम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? सो लेट अस मेक स्ट्रक्ट या हम क्लास नोड बना सकते हैं। इधर मुझे कंस्ट्रक्टर की जरूरत नहीं है, तो मैं सिर्फ स्ट्रक्चर से भी काम चला सकती हूँ। अभी आप देखेंगे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। सो इंट इन्फो एंड देन नोड एस्ट्रिस्क
नेक्स्ट, ये मेरी नोड स्ट्रक्चर बन गया. देन क्लास लिंक्ड टाइप, उधर हमने स्टैक टाइप बनाई थी, इधर नाम दे देते हैं लिंक टाइप. ओके, देन टॉप तो लिंक लिस्ट, टॉप तो स्टैक की टर्मिनोलॉजी. जो मेरा लिंक लिस्ट का पॉइंटर होता है विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड, उसका नाम टेक्स्ट बुक्स में स्टार्ट या हेडर पॉइंटर होता है. ओके, देन let us make a constructor link type. When my program starts, my linked list is empty, my SLL is empty, so my start is grounded. तो constructor के अंदर क्या करेंगे, start equal to null. Then उसके बाद let us make member functions. सबसे पहले तो create new node तो इधर आएगा ही आएगा, चाहे आप बिगिनिंग में ऐड करें नोड या मिडिल में करें या एंड में करें. भाई फ्रेश मेमोरी लेने के लिए क्रिएट न्यू नोड बनाना पड़ेगा. और लिंक लिस्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती. नोड एट द एंड, यू कैन ऐड ए न्यू नोड एट द ith पोजीशन. सिमिलरली डिलीशन के लिए जो रिस्ट्रिक्शन है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, वो सिर्फ स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की होती है, लिंक लिस्ट की नहीं होती. Now, create new node will always return a pointer to the freshly created memory, और वो node asterisk type का होगा इस प्रोग्राम में. So node asterisk create new node and we will be passing some integer value जो उसके info part में create new node store करा दें. अब सबसे पहले प्रोग्राम जब स्टार्ट करेंगे, आप देखिए जो भी ऊपर ऑपरेशंस आपकी गाइडलाइंस में मेंशन हैं, तो उसके लिए हमें एक सैंपल लिंक लिस्ट पहले बनानी पड़ेगी. फर्स्ट टाइम मेन मेन्यू डिस्प्ले करने से पहले एक सैंपल लिंक लिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें 4, 5, 6 कुछ भी हम नोट्स डाल सकते हैं. फिर उस सैंपल इनिशियल लिंक लिस्ट के ऊपर, इनिशियल सेटअप के ऊपर हम ये इनमें से कोई भी ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू द मेन्यू चॉइस चला सकते हैं. सो फॉर मेकिंग एन इनिशियल सेटअप, दैट इज एन इनिशियल सिंगली लिंक लिस्ट, I will be, making a member function create new list. ठीक है, और इसको हम पास करेंगे node asterisk, pointer to the new node to be fitted. जितनी बार ये create new list कॉल होगी उतने nodes fit होते जाएंगे और उसके बाद हम अपना मेन्यू चलाएंगे. अब we can make various possibilities, जैसे sample possibilities मैं आपको दे रही हूँ. add at end, लास्ट में नोड को फिट करना लिंक लिस्ट के. देन void add after. add after मीन्स किसी पर्टिकुलर नोड के बाद नया नोड ऐड करना. देन void add before, किसी पर्टिकुलर नोड से पहले नया नोड ऐड करना. देन void डिलीशन, और ले सकते हैं. चलो मैं आपको इस बार काउंट दिखाती हूँ. पिछली बार हमने काउंट आपके लिए छोड़ दिया स्टूडेंट्स के लिए. void count, that is counting the number of nodes presently and in the linked list, और डिस्प्ले तो मुझे चाहिए ही चाहिए. so void display. ठीक है, so this is my class. In the next lecture, children, tomorrow I will take up the definition and